Assalamu alaikum, my dear students. Today we will talk about structure and function of cell. Cell structure and function. We are concerned over here with eukaryotic cell or animal cell. So we will discuss about the eukaryotic cell structure and function. फर्स्ट लिटिल बिट मैं उसके डिस्कवरी के बारे में बताऊंगी कि किस तरह ये सेल जो था ये डिस्कवर हो गया, फिर उसकी स्ट्रक्चर क्या थी और उसमें जो ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं उन सारे ऑर्गेनेलीज को लिटिल बिट उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे मेनली बेसिक बायोकेमिस्ट्री में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल के साथ हम कंसर्न हैं। इसमें हम पहले देखते हैं कि सेल को फर्स्ट किसने स्टडी आउट किया था। दिस सेल इज स्टडीड बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक in 1665 by using its own discovered microscope which is having low resolution power या उसकी magnification and resolution कम थी। And Robert Hooke in 1665 considered cell as a non-living. He considered cell as a dead or non-living. It is a non-living part of the body of eukaryotic cell, So his microscopic resolution power is low. That's why he considered that the extracted the stem cell of the barley plant, and वो जो प्लांट के बारले के एक्सटर्नल स्टेम सेल थे वो यूं थे कि वो ड्राइड थे एंड ही कंसिडर्ड इट एज अ डेड सेल। और वो स्टेम के सेल चूँकि बहुत ज़्यादा ड्राइड थे, हार्श थे, रिजिड थे, एंड उन्होंने ये बोला कि ये जो बारले के स्टेम के सेल हैं आउटसाइड स्टेम के आउटसाइड सेल हैं ये ड्राइड हैं, रिजिड हैं और ये नॉन लिविंग हैं। ये हमारे पास ना ग्रोथ कर सकते हैं और ना ये इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन फिर जब 1673 में लेवनहुक ने इसको स्टडी आउट किया on his high resolution microscope, and under high resolution microscope he observed that the bacterial cell in a pond, he studied bacterial cell in a pond water, and in a pond water over there he said that the cell is a living cell is considered as a living, it is not a dead or non-living. And he said that under a high resolution or magnification microscope he studied a bacterial cell in a pond water and said that the cell is a living part of the body. और फिर जब हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए उन्होंने ये कहा कि हमारे पास सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। लॉरेंस इन 1830 considered that Lawrence considered that the cell is a basic structural unit of the body. Basic structural. It is a basic structural unit of the body of life, and in 1830, and after than that there is a many discoveries occurred over there. And Robert Brown in 1831 discovered that over there is one of the main central part in the cell. In all of the cell there is a main central part present over there, and that central part is called nucleus. और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो न्यूक्लियस में एक हीवी ऑर्गेनेली मौजूद होता है, वी कैन कंसिडर ऑर्गेनेली और मास मौजूद होता है जो बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड होता है, मिडल में मौजूद होता है, उसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस। आफ्टर देन दैट in the mid of the 19th century, Sheldon and Shawan gives a cell theory, and they give some of the basic point about the cell constitution. और उसमें ये कहा गया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम ऐसे कंसीडर करते हैं जैसे कि हम बिल्डिंग को बिल्डअप कर रहे हो और उसकी दीवारें जो हैं वो हर एक दीवार जो है वो ईंट से बनी हुई, उसकी बेसिक यूनिट जो होती हैं वो ईंट होती हैं और वो एक ईंट दूसरे के साथ मिलके एक होल दीवार बनाते हैं और इसी तरह होल बिल्डिंग बनता है। तो सेम लाइक दैट दे आर सेइंग कि हमारे पास लाइफ जो है
उसकी बेसिक यूनिट एक सेल है, वो सेल आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, टिश्यू बना लेते हैं, और वही टिश्यू फिर से रिकम्बाइन होके हमारे पास एक आर्गन बनाते हैं, और एक आर्गन दूसरे के साथ मिलके आर्गन सिस्टम बनाते हैं, और इसी तरह एक होल ऑर्गेनिज्म बनता है और आर्गन सिस्टम बनता है. So that's the basic concept of the cell, which is given some of the points, basic point about the cell, that is given by Sheldon and Schwann in mid of the 19th century, which is compiled in the form of cell theory. So the main point of the cell theory is all organisms are composed of, the first one point we will write it over here, that all organisms are composed of cell. All organisms are composed of cell, and cell is the basic structural and functional unit. जिस तरह अभी मैंने बोला कि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है, जिस तरह ईंट एक दूसरे के ऊपर सवार होके एक दीवार बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, सेम लाइक दैट सेल जो है वो एक दूसरे के साथ मिलके हमारे पास एक होल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. Cell is the basic structural and functional unit of life. Structural and functional unit of life. And जो थर्ड वन पॉइंट शील्डन एंड श्वान ने दी थी, उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे पास नीव सेल बनते हैं, these new cells are originated from old pre-existing cell. Old cell are originated from pre-existing cell. यानी ऐसे नहीं है ये सेल जो है फिर से कोई सब्सटेंसेस मिलके सेल बना लेते हैं, बल्कि यही सेल प्रोड्यूस्ड होते हैं फ्रॉम द ओल्डर वंस एंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल. उसके पेरेंटल सेल होते हैं जो कि जाके डिवाइड होते हैं थ्रू माइटोसिस प्रोसेस. वो तो बाद में डिस्कवर हुआ कि माइटोसिस होती हैं, यानी सेल खुद को डिवाइड करते हैं और जाके उनकी ग्रोथ होती है. तो यही पॉइंट शील्डन एंड श्वान ने भी दी थी कि न्यू सेल आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओल्ड सेल आर प्री एग्जिस्टिंग सेल. एंड जो हमारे पास एक और पॉइंट थी, दैट इज द सेल थ्योरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. सेल थ्योरी जेनेटिक मटेरियल, यानी सेल में हमारे पास ये नहीं बताया गया था कि ये जेनेटिक मटेरियल किस तरह ट्रांसफर होते हैं, लेकिन ये कहा गया था कि ऑल द सेल इज हैविंग some of the genetic material which is present in the central part of the cell. So हमारे पास बाद में डिस्कवरी होगी कि ये तो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है जो कि इन्वॉल्व है इन द जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफरिंग. और फिर जो हमारे पास सेल के बारे में और एक और पॉइंट दी गई थी, पेश की गई थी, दैट इज द एनर्जी फ्लो. एनर्जी फ्लो इन द सेल is in the form of chemical energy, which is converted into then into the usable form of an energy in our body, that is in the form of adenosine triphosphate. And that energy which is flow from food through our body, from food by metabolism we receive or we get an energy in the form of an ATP. वो एनर्जी जो कि हमारे फूड में एक केमिकल फॉर्म में मौजूद होती हैं, उधर पे डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, बॉडी में इंटरनली जाके वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं. मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व बोथ कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म. या तो सब्सटेंसेस की सिंथेसिस हो रही हो तो इसको एनाबॉलिक प्रोसेस हम कहते हैं, या अगर सब्सटेंसेस ब्रोकन डाउन हो रहे हो तो इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं. जब हमारे पास फूड मटेरियल को हम इनगल्फ करते हैं, इनटेक करते हैं, उन फूड मटेरियल को जब हम एंजाइम के थ्रू ब्रोकन डाउन करते हैं, इट विल derived as in another form of an energy. From chemical form it will convert it into another one form of an energy. That energy is in the form of ATP. ADP को ये कन्वर्ट कर देते हैं, ADP को फास्फोराइलेट करके
प्रोटीन फास्फेट मिल जाता है और हमें ये एटीपी दे देते हैं, एंड दिस यूजेबल फॉर्म ऑफ एन एनर्जी इन आवर बॉडी, यानी एक फॉर्म से एनर्जी कन्वर्ट हो गई। वो एनर्जी जो फूड में केमिकल एनर्जी फॉर्म में मौजूद थी, वो केमिकल एनर्जी यूजेबल फॉर्म ऑफ एन एनर्जी में आ गई, इस्तेमाल हो गई, एडीपी की फास्फोराइलेशन होके एटीपी बना लेते हैं बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। So this is also occurred in the cell, within a cell. So this is the one of the basic point which is also given by Sheldon and Schwann in case of cell, that all of the cell are chemically the same. सारे के सारे सेल chemically same होते हैं। ये एक और पॉइंट थी कि chemical composition of all of the cell are same. The chemical composition of all the cell are same, लेकिन चूंकि उसके फंक्शन डिफरेंट आ रहे थे तो उसमें लिटिल बिट पे डिफरेंशिएशन आ रही थी, लेकिन ये एक बेसिक पॉइंट थी जो कि इस थ्योरी में पेश की गई थी कि almost 90% of the chemical composition of all of the cell are same. They are composed of phospholipid or glycoprotein in its composition. जिस तरह हम देखते हैं कि सारे के सारे सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है वो बने हुए होते हैं फास्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन से, along with some other molecule, लेकिन सारे के सारे सेल के जो सेल मेम्ब्रेन होंगे उसकी कॉम्पोजिशन सेम रहेगी। तो इसी तरह हम कहते हैं कि सेल की ऑलमोस्ट 90% केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहती हैं, लेकिन उसके फंक्शन के चूंकि डिफरेंट हो जाते हैं तो उनकी वजह से उनकी स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आती हैं। सो हमारे पास उन स्टडी को हम जिसमें हम सेल स्टडी करते हैं, उस पार्ट ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी, और वी कैन कॉल इट साइटोलॉजी। उस बायोलॉजी को जिसमें हम सेल को स्टडी आउट कर रहे हैं, सो दैट पार्ट ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। और जब हमारे पास वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, study of cell is called cell biology or cytology. और चूंकि सेल वो वाला लिविंग पार्ट है हमारे लाइफ का जो कि डिफ्रेंशिएट करता है, सेल की बहुत सारे फंक्शन है, उसमें एक फंक्शन ये है कि ये हमें डिफ्रेंशिएट करके देता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डिफरेंशिएशन देता है, इट डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमें बाउंड्री लाइन बताते हैं कि अगर ये सेल मल्टीप्लाई होके रिप्रोडक्शन दे रहे हैं, ग्रोथ हो रही हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास मेनली लिविंग है। यानी सेल जो है वो सेंसिटाइज भी करता है, सेल जो है वो एनर्जी देता भी है, सेल जो है वो एनर्जी लेता भी है, सेल एज अ सेंसरी एजेंट भी एक्ट कर सकता है, सेल रिस्पायरेशन भी कर रहा है, सेल मेटाबॉलिज्म भी परफॉर्म कर रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस उसके अंदर हो रहे होते हैं, सेल में जेनेटिक मटेरियल भी मौजूद है, तो ये जाके माइटोसिस या मेयोसिस फिनोमेना में इन्वॉल्व हो सकता है। इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे बॉडी के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैं वो बॉडी में मौजूद हैं, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शंस हैं, लेकिन अगर हम उसके साइजेस देखते हैं तो साइज में सबसे बड़ा जो सेल है हमारे बॉडी में दैट इज ओवम सेल, और सबसे छोटा जो साइज में सेल है दैट इज स्पर्म सेल। और जब हमारे पास कोई भी डिफरेंट सेल आते हैं तो वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आते हैं, लेकिन हमारे पास मोस्टली जो फंक्शन है वो इसके स्ट्रक्चर और शेप के बेस्ड, यानी सारे सेल जो है वो उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन पर आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। यानी कुछ सेल जो है हमारे बॉडी में, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास ये नर्व सेल्स हैं, तो नर्व सेल्स जो है वो ज़रा सिलेंड्रिकल होते हैं, वो साइज में ज़रा फाइब्रियस लाइक होते हैं, या जो केराटिन के सेल हैं जो नेल्स, हेयर्स और प्रोटीन्स बनाते हैं वो स्टेफ होते हैं। इसी तरह हमारे जो मसल के सेल हैं वो अपने ही स्ट्रक्चर देते हैं, तो डिफरेंट सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसके बेस्ड पे उनके डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं। सो हमारे पास सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, और मोस्टली जो एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होती हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सेल। यानी एक्टिविटी ऑफ होल ऑर्गेनिज्म
is dependent upon whole organism is dependent upon activity of cell. यानी कि सेल जिस तरह एक्टिविटी परफॉर्म, अगर एक्टिव सेल्स है तो हमारे पास वही वाला होल ऑर्गन एक्टिव होगा, होल ऑर्गेनिज्म उससे एक्टिवेट होगा। सो हमारे पास सेल के एक्टिविटी पे बेस्ड है कि कौन सा सेल जो है वो ज़्यादा एक्टिव है या वो जाके ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। सो हम आते हैं टुवर्ड्स द एक्टिविटी ऑफ होल ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन द एक्टिविटी ऑफ सेल। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द जनरलाइज्ड यूकैरियोटिक सेल। So the generalized structure of eukaryotic cell is having one of the organelle, we can say, that is the cell membrane. It is having cell membrane. Let's suppose I will draw the structure of eukaryotic animal cell. This is cell membrane of that animal cell, और इस सेल मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लिटिल बिट डिस्कस करेंगे बाद में। सेल के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, वन इज सेल मेम्ब्रेन एंड अनदर वन इज न्यूक्लियस। ये दूसरा जो पार्ट है जो सेंटर में मौजूद होता है, जिसको सेल के स्ट्रक्चर अभी होल डिस्कवरी हुई ही नहीं थी, लेकिन फिर भी ये न्यूक्लियस डिस्कवर्ड हो गया था कि इसके सेंटर में कोई सर्कुलर बॉडी मौजूद है जिसमें जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। और जो इन बिटवीन स्पेस है, इन बिटवीन स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सो मेनली किसी भी सेल में, किसी भी यूकैरियोटिक सेल में ये 3 पार्ट्स होते हैं। वन इज सेल मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ द यूकैरियोटिक सेल विल बी एनक्लोज्ड इन इट्स ओन मेम्ब्रेन। और इसी तरह जब हम देखते हैं तो हर एक ऑर्गेनेली जो इस सेल के या साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में जो मौजूद होती है, वो हर एक ऑर्गेनेली पर अलग से अपने मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड होती हैं। इसी तरह हमारे पास जो इनकी 3 पार्ट्स है, फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, अनदर वन इज न्यूक्लियस एंड द थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पे पहले आते हैं, पहले स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर, वी कैन से इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर आर अराउंड द सेल ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जितनी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिविंग सेल्स हैं उनके ऑल अराउंड एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, व्हिच इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड bilayer. Phospholipid bilayer means कि इसमें हमारे पास एक फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है और उनसे फैटी एसिड की एक्सटेंशन हुई होती है। आपको पता है कि फास्फेट जो है वो PO4 है, 2 नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, ये हाईली पोलर ग्रुप है। और जब ये पोलर है तो ये पोलर सॉल्वेंट के साथ ज्यादा इंटरेक्टिव होता है, एंड वाटर इज आल्सो अ पोलर सॉल्वेंट। If we can draw a little bit structure of that water molecule, so it will interactive with this phosphate group. So this one end of the cell membrane is called hydrophilic end of cell membrane, and this is the extension from this phosphate circular head, and this is called fatty acid extension. This fatty acid extension is fatty acid or lipid is hydrophobic, mainly they are organic and having non-polar end, so they are hydrophobic in nature, they are not having any polarity. So जब फास्फोलिपिड बायलेयर की अरेंजमेंट होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, तो वो यूं होती हैं कि फास्फेट एंड बाहर की तरफ होते हैं ताकि वो साइटोसोल के बाहर की तरफ रहे, और जब वो बाहर की तरफ रहते हैं तो ये वाटर के साथ इंटरेक्टिव रहते हैं, और जो इसके फास्फेट एंड है, फैटी एसिड वाले एंड है, वो अंदर की तरफ रहते हैं, अंदर की तरफ एक्सटेंड हो जाते हैं। सो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास ये फास्फेट ग्रुप है, एंड ये इसके फैटी एसिड टेल्स हैं, एक्सटेंशन हैं, जो कि अंदर की तरफ चले गए हैं क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर के साथ इंटरेक्टिव नहीं है, और जो वाटर के साथ इंटरेक्टिव है वो फास्फेट ग्रुप है, वो दोनों के
दोनों साइड्स हमारे पास साइटोसोल के आउटसाइड आ जाते हैं। और इसी तरह हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का ये बायोफॉस्फेट लेयर और साथ में कुछ स्टीरोल या ग्लाइकोलिपिड के मॉलिक्यूल पड़े हुए होते हैं इन बिटवीन, और बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी बीच में पड़े हुए होते हैं इन दैट सेल मेम्ब्रेन in order to give a passage gateway। कि कुछ से a cell membrane is a semi-permeable membrane or protective membrane which is present all around the cell of eukaryote। तो हमारे पास चूंकि ये सेमी परमिएबल है, तो सेमी परमिबिलिटी भी इसके पोलरिटी के बेस्ड है कि ये कुछ सब्सटेंसेस को इंटरनली एनगल्फ करने देते हैं, उसके साइज और पोलरिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कितने साइज का है और कितनी पोलरिटी है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो सेल मेम्ब्रेन permeability is dependent upon the size and charges or polarity of the molecule। तो हमारे पास ये जो बायलेयर है ये यूं अरेंज होते हैं और इसमें कुछ स्टीराइड या स्टीरोल के ग्लाइकोलिपिड्स के मॉलिक्यूल इसमें पड़े हुए होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। और हमारे पास इसमें कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल यूं एम्बेडेड होते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज जस्ट लाइक अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो इसके लेयर्स बनते हैं दीज आर फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड भी होते हैं एक सेंस में, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं जिस तरह फ्लूइड के मॉलिक्यूल रेंडमली मूवमेंट दे रहे होते हैं, सेम लाइक दैट जो इसके बाय लेयर्स है वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एज इट्स नेम इंडिकेट कि इसके जो लेयर्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फ्लूइड और मोज़ेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया गया था। मोज़ेक वो होता है जिस तरह हम ईंटों का दीवार देखते हैं, उसमें ईंटें डिफरेंट शेप में फिक्स हुए होते हैं, किसी में बड़ा ईंट होता है, किसी में छोटा होता है, या ट्राइंगुलर शेप होते हैं। जिस भी कलर की ईंटों की दीवार अगर देखी हुई हो तो वो जिस तरह सीमेंट में एम्बेडेड होते हैं, सेम लाइक दैट प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल इसी मॉडल में एम्बेडेड होते हैं। दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल and it's semi permeable membrane which will allow some of the molecule to pass through it and another one is not। so हमारे पास ये shape of the cell को भी मेंटेन करते हैं, permeability को भी मेंटेन करते हैं, सेल को डी शेप होने से रोकते हैं, इसको सेल को इम्यूनिटी भी देते हैं और सेल के जो मेन शेप है उसको मेंटेन रखते हैं। सो दीज आर ऑल द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब हम आगे जाते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द सेंट्रलाइज्ड पार्ट ऑफ द सेल ऑफ ऑल द सेल, आइदर इट्स प्लांट सेल और एनिमल सेल। लेकिन जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रलाइज्ड पार्ट होता है और इसमें हमारे पास एक क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स आर क्रोम मीन्स कलर्ड एंड सोम मीन्स बॉडीज। इसमें कलर्ड बॉडीज होती हैं और इसके अंदर सारे के सारे डीएनए मौजूद होती हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से बनी हुई होती है ये क्रोमोसोम। और इस डीएनए की जो एक्टिव पार्ट है दैट इज कॉल्ड जीन्स, और वही हमारे पास ट्रांसफर होते हैं एक सेल जब दूसरे सेल के साथ मिलता है, जिसे मोस्टली गोनेडल सेल, जब हम मयासिस की बात कर रहे होते हैं तो उसमें ये हमारे पास क्रोमोसोमल ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। So that's the main function of the nucleus, to transfer a genetic material which is present in the center of that nucleus। लेकिन इस न्यूक्लियस को भी एक मेम्ब्रेन एनक्लोज कर रहा होता है that is called न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी हर एक ऑर्गेनेली को अपना मेम्ब्रेन एनक्लोज, हर एक ऑर्गेनेली अपने मेम्ब्रेन में एनक्लोज होती है। तो उसमें अगर हम न्यूक्लियस की एग्जांपल है तो न्यूक्लियस को भी एनक्लोज कर रहे होते हैं, that is called न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस चूंकि सेंट्रलाइज्ड पार्ट है, जेनेटिक मटेरियल कैरी ऑन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। सो दिस इज द एंड इट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ own copy of DNA, that is the replication, and it also involved in the formation of RNA transcription, and that transcription process will then goes towards the ribosomes to become translate an amino acid into the form of protein। So all these phenomena, replication is the formation of DNA from its own DNA, and formation of DNA RNA from DNA is called transcription, and translation is the protein formation. All these phenomena of molecular basis is concerned with
the nucleus. So हमारे पास 3 मेन इसके फंक्शंस भी आते हैं कि जेनेटिक ट्रांसफर कर रहे होते हैं. जेनेटिक ट्रांसफर किस तरह कर रहे होते हैं? फर्स्ट तो यही डीएनए अपनी ही कॉपी बनाते हैं, so that is called replication process which is occurred in that nucleus. एंड ये डीएनए आरएनए बनाती हैं और वही आरएनए बाहर मैसेज लेके आती हैं टुवर्ड्स राइबोसोम्स टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन. प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं. सो ये हमारे पास रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन हो गई. फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज ट्रांसक्रिप्शन. एंड जब यही आरएनए प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाती हैं, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. So all these phenomena are concerned with the nucleus. So this is all about the function of that nucleus. अब हम आते हैं towards cytosol. Cytosol is the in-between part of the nucleus with that of ribosomes. Cell membrane. Nucleus और cell membrane के बीच की जो space है, that is called cytoplasm. साइटोप्लाज्म के फ्लूइडी पॉट को, चूंकि ये हमारे पास इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं अलॉन्ग विद दैट राइबोसोम्स. एक तो ये राइबोसोम्स हैं, लेकिन राइबोसोम्स के अलावा अगर ये एनिमल सेल है तो इसमें छोटे छोटे विक्यूल्स भी होते हैं बहुत सारे. और अगर ये प्लांट सेल है तो एक लार्ज विक्यूल होता है. अलॉन्ग विद दैट हमारे पास इसी सेल में एक पावर हाउस ऑफ द सेल भी मौजूद होता है, ऑर्गेनेली. इसी सेल में एक ऑर्गेनेली पावर हाउस ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है. और साथ में हमारे पास यहाँ पे कुछ लाइसोसोम्स भी होते हैं. ठीक है, लाइसोसोम. और इसी साइटोप्लाज्म में हमारे पास मौजूद होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, which is started from here the nucleoplasm and moving towards the cell membrane. और ये हमारे पास ट्यूब्यूल फॉर्म में होते हैं और चूंकि ये एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं, so these are endoplasmic reticulum. और एक हमारे पास है जो सेक्स पड़े हुए होते हैं, these are Golgi apparatus. Golgi apparatuses. और ये इसके वेसिकल होते हैं, Golgi apparatus. अच्छा जी, हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन थी या न्यूक्लियस थी, इनके हमने फंक्शन भी देख लिए और पढ़ लिए. सेल मेम्ब्रेन भी सेमी परमिबिलिटी देते हैं, सेल रिकॉग्निशन करते हैं, परमिबिलिटी में सपोर्ट करते हैं. लेकिन जो हमारे पास न्यूक्लियस थी वो जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में इन्वॉल्व थी. अब हम थर्ड आते हैं टुवर्ड्स द राइबोसोम्स. राइबोसोम्स जो हैं वो अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं तो ये 80 स्विटबर्ग यूनिट से बने हुए होते हैं, 30 and 50 स्विटबर्ग यूनिट. और यही राइबोसोम्स इन्वॉल्व है इन द प्रोटीन सिंथेसिस. इसका मेन फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में अलॉन्ग विद आरएनएज, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए उसको खुद के साथ इन्वॉल्व कर देते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस देते हैं. इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म इन मूविंग टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन. और इस ये चूंकि ट्यूबुलर शेप स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं और ये ट्यूब्यूल जो हैं ये एक दूसरे के साथ ओपन होते हैं. यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप यू आर्गन बन रही होती है कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते. ये जो इन्वेजिनेशन हुई है, दिस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज कंसर्न विद द it is having 2 types, we can say. One is rough endoplasmic reticulum and another one is a smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum is that one which does not having any ribosomes on its surfaces, so that is called smooth. और जब इसके surfaces पे ribosomes लगे हुए होते हैं, so that is called rough endoplasmic reticulum. This red grains like structure show that is rough endoplasmic reticulum.
अब जिस पे राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं वो तो इन्वॉल्व होते हैं ऑब्वियसली इन प्रोटीन सिंथेसिस। उसका काम यही होता है कि उसके सरफेस पे प्रोटीन मौजूद हैं, राइबोसोम्स मौजूद हैं, तो आरएनए आके यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैटी एसिड या लिपिड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकते। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये काम है कि इट विल डिटॉक्सिफाई सम ऑफ द लिपिड, इट विल इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन। सो हमारे पास just like this endoplasmic reticulum, we are having another one organelle in that cell that is having a sac-like structure, cylindrical sac-like structure, which is open from the inside. ये थीली की तरह पड़े हुए होते हैं, और जब ये एक तेला होता है इसको हम गाल्जी बॉडी कहते हैं। और ये जब बहुत सारे तेले आपस में मिलते हैं, बहुत सारे मीन्स 2 से 4 या 2 से 8 तक ये तेले मोस्टली पाए जाते हैं इसी सेल के साइटोप्लाज्म में। सो इसको हम फिर कहते हैं गाल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जब गाल्जी कॉम्प्लेक्स और जब इसके साथ ये विजिकल भी हम इंक्लूड कर दें तो इसको हम कहते हैं गाल्जी अपरेटस। यानी एक तेला अगर अलग थलग पड़ा हुआ हो सो इसको हम बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी हम कह सकते हैं, या एक सेक लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम गाल्जी बॉडी कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे कोमेलो गाल्जी, उसके बेस्ड पे इस ऑर्गेनेली को नाम दिया गया कोमेलो गाल्जी। और जब ये सेक 2 या 3 या 2 से 4 तक ये आपस में इस तरह ग्रुप्स में पड़े हुए हों, सो वी कैन कॉल इट गाल्जी कॉम्प्लेक्स। और जब इसके साथ इसी विजिकल या इसी तेले के साथ जब इसके जो रिप्रोड्यूसिंग पार्ट्स हैं या एक्सटेंशंस हैं विजिकल्स, अगर ये विजिकल along with its enzyme and these six, all these are called Golgi apparatus। फिर इसके नेम्स जो हैं, ये जो 3 नाम गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी अपरेटस और गाल्जी बॉडी हम सुनते हैं, इसी बेस्ड नाम दिए गए हैं। और ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी अपरेटस का काम ये है कि ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं या फैटी एसिड सिंथेसाइज कर रहे हैं, ये हमारे पास आ जाए इसी गाल्जी अपरेटस में। ये इसका काम ये है कि इसको पैक कर दे, जस्ट लाइक ट्रक ये एक्ट करते हैं, जिस तरह ट्रक सामान लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, सेम लाइक दैट ये प्रोटीन को या लिपिड्स को पैक करके इट विल मूव दोज प्रोटीन और लिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द सेल टू द अनदर वन पार्ट। सो ये हमारे पास इज अ सिक्रीटरी ऑर्गन भी एक्ट कर सकते हैं, ये मॉडिफिकेशन भी देते हैं, ये पिकिंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, पिकिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एंड सिक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं। एंड इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ दोज लाइजोसोम्स। इनसे ही हमारे पास ये लाइजोसोमल बॉडीज बनती हैं। और लाइजोसोम्स क्या है? लाइजोसोम्स को हम कहते हैं सीसाइडल बैग्स। ये वो वाले ऑर्गेनेली हैं सेल के जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। दीज आर लाइजोसोम्स। इट मे बी नॉट विजिबल। सो हमारे पास लाइसोसोम्स, ये इसको सीसाइडल बैग बोलते हैं क्योंकि ये अगर लिटिल बिट अमाउंट में सेल मेम्ब्रेन पर से कुछ अपने सिक्रीशन पास कर दें तो फिर तो जाके एक टारगेटेड स्पीशी को ये किल करते हैं या उसको ब्रोकन डाउन करते हैं। लेकिन अगर ये अपने सारे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम निकाल दें, बाहर निकाल दें, तो ये इसकी होल सेल बर्स्ट आउट हो जाती हैं और इसी तरह ये होल सेल को खा लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं सीसाइडल बैग्स। ये इसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम मौजूद होते हैं और यही हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को सिंथेसाइज करना काम है गाल्जी अपरेटस का, गाल्जी बॉडीज का। और फिर हमारे पास हैं वेक्यूल। वेक्यूल जो है वो एनिमल सेल में मैंने कहा छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। वेक्यूल को हम स्टोर बैग्स भी कह सकते हैं और स्टोर हाउस भी कह सकते हैं किसी सेल का। इसी में स्टोर्ड होते हैं वेस्ट मटेरियल, मिनरल्स, वाटर्स एंड फूड पार्टिकल्स। So vacuole are the storehouse of the cell and one of the most important organelle of the cell which we can discuss। तो हम इस पे एक अलग सा लेक्चर भी दे सकते हैं, लेक्चर ले सकते हैं ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके साथ हम मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे कंसर्न हैं और इसकी स्ट्रक्चर मैं एलुसिडेट करके बताऊंगी भी इंशाल्लाह।
दूसरे लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया पे एक अलग सा लेक्चर दूंगी। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है, जिसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है स्मूथ और एक इनर मेम्ब्रेन है वो कन्वोल्यूटेड या इनविजिलेशन फॉर्म में पड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, और ये चूंकि वो वाली ऑर्गेनेली हैं जो एनर्जी खुद प्रोड्यूस करती हैं और डिराइव करती हैं फ्रॉम ऑल दोज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, और पावर स्टेशन भी इसको बोलते हैं, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, और इट्स आल्सो कॉल्ड पावर स्टेशन। आई थिंक होपफुली कि मैंने इसमें सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेली के बारे में काफ़ी कुछ कवर किया हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में एक लेक्चर लूंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।